Okay students, let us proceed to study about the methods of integration. Okay, in last lecture we have learned about a theorem which is if x is equal to phi t and x is a differentiable function in t, then integral of f of x dx is written as integration of f of phi t into phi dash t dt. Okay, here we have corollary first, which is written as if integral of f of x dx is equal to phi of x plus c. C is integral constant. C is arbitrary constant or integral constant. Okay, then integral of f of ax plus b. X plus b means this one is a linear expression in x. A linear expression in x dx is equal to 1 upon a, where a is the coefficient of x. A is the coefficient of x into phi of ax plus b dx. क्लियर स्टूडेंट्स, रीड आउट समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है, अगर इफ और फंक्शन इन अ लीनियर एक्सप्रेशन, कोई फंक्शन अगर लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो हमें उसको क्या करना है, उसका इंटीग्रल क्या होगा, जो फंक्शन का इंटीग्रल रहेगा तो रहेगा। हम यहाँ पे अज्यूम किए हैं कि फंक्शन का इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स है, तो फाई ऑफ एक्स तो रहेगा और हमें क्या कर देना है, डिवाइडिंग बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के बगल में जो भी रहेगा नंबर उसे क्या बोलते हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड कर देना है। जैसे ऐसे बाजू में यहाँ पे क्या है ए, तो हमने ए से अपने ए से डिवाइड कर दिया, बराबर। कैसे किया, क्यों किया, लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। Since integration of f of x dx is equal to phi of x plus c, ये कहां से मालूम चला, ये हमें गिवन है। ओके, let I is equal to integral of f of ax plus b dx. Let I for integral is equal to integral of f of ax plus b dx, ऐसा हमें एज्यूम किया। अब देखिए, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। We have to change it in standard form, that is f of t, f of x, f of p। समझ रहे हो लोग? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या एग्जांपल दिया, f of t, f of p कुछ इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, पुट ax plus b is equal to t। मतलब हमें क्या करना है इसको, अभी यहाँ पे क्या बन गया, f of t बन गया। f of t मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, देखो ना, f of x dx is equal to phi of t, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? हमने क्या किया, पुट ax plus b is equal to t, taking, अब क्या करना है, taking derivative of both sides with respect to x, we get derivative of ax is a, derivative of ax is a, since derivative of x with respect to x is 1, t b का 0 हो गया और t का dt by dx, यही तो t का with respect to x dt by dx. So a is equal to dt by dx. In this way we have a into dx is equal to dt. मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम पूरे जब जैसे ही आपने ax plus b को t में कन्वर्ट किया तो हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। If ax plus b is converted in, मतलब चेंज इट, या उसको अपने t के फॉर्म
टू चेंज dx इन द फॉर्म ऑफ dt। कैसे देखिए मिलते हैं। अभी dx वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, देन dx इज इक्वल टू 1/a dt। ये देखिए, इफ ax plus b is equal to t, if ax plus b is equal to t, then dx क्या होगा 1/a dt। मतलब सभी को हमें t के फॉर्म में लाना है। you have to bring, you have to convert, you have to change, सबको t में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज किया आपने, then I is equal to f of ax plus b को आपने क्या अज्यूम किया है, t अज्यूम किया है। क्लियर, f of t को आपने क्या अज्यूम किया है, f of t, सॉरी यहाँ पे ax plus b को आपने क्या अज्यूम किया है, t अज्यूम किया है। और dx में क्या चेंज हुआ, 1/a dt, 1/a dt, and this one is equal to 1/a integration of f of t dt। okay, clear, f of a dx, और this one is equal to 1/a। let the integral of f of t आपने यहाँ assume किया है f of x ds equal to dt, तो f of t dt को आप समझिए कि a phi of t हो गया प्लस c, ऐसा assume किया। let integration of f of t is equal to phi of t। okay, so this one is equal to 1/a phi of t plus c, and this one is equal to 1/a phi means phi t, t मतलब क्या, ax plus b plus c। okay, since integral of f of x is equal to phi of x, तो ऐसा हमने एज्यूम किया कि भाई इंटीग्रल ऑफ f of t क्या है, phi t है, तो phi t रख दिया प्लस c। अब t को हमें फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, t is ax plus b, so 1/a phi of ax plus b plus c। so this one is our first corollary। okay, इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x plus 6 dx। ओके, फंक्शन इज साइन, f of x फंक्शन किसका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन किसमें है, लीनियर एक्सप्रेशन में है, ax plus b, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, दिस इज इक्वल टू 1/5 माइनस कॉस ऑफ 5x plus 6 plus c। क्लियर, 1/a phi of x plus b means there are integral of sin x, that is minus cos x minus cos of पूरा का पूरा, और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, x के बगल में कौन है, 5 है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वन इज माइनस 1/5 cos of 5x plus 6 plus c। ओके, तो ये तो रहा आपका फार्मूला मेथड, मतलब डायरेक्ट आपने यूज कर लिया कोरोलरी मेथड। लेट अपना इस मेथड से करते हैं जैसे हमने प्रूव किया। लेट 5x plus 6 is equal to t, then 5 is equal to dt by dx, means 5 dx is equal to dt। हमें 5 को यहाँ भेज देना है 1/5 dt। so in this way this is equal to 1/5 और साइन ऑफ इसको आपने t अज्यूम किया है, dx is equal to 1/5 dt, and this is equal to 1/5 minus cos t plus c minus 1/5 cos of t, t means 5 of x plus c। ओके, इस तरह से आप कोरोलरी फर्स्ट को प्रूव कर सकते हो। क्योंकि क्या था कि अगर कोई इंटीग्रल है, कोई फंक्शन का इंटीग्रल phi of x है,
तो f ऑफ x प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो रहेगा मतलब उसका जो फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन, जैसे अभी फंक्शन क्या था साइन था, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस होगा, और जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव में क्या करते थे आप, मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या करना है डिवाइड। ओके, नोट कीजिए स्टूडेंट्स।